Good evening, everyone. In the previous lecture, we have gone through the electric field due to a dipole on its axial line, its equatorial line, and the torque acting on the dipole when placed in a uniform electric field. Now we will go through the numerical problems based on that very topic. So let's take our first numerical, that is two charges, one 5 microcoulomb and another minus 5 microcoulomb are placed at 1 mm apart. Calculate the dipole moment, right? तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? डाइपोल मूवमेंट. तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते कैसे हैं? सॉल्यूशन, दैट इज पहले लिखते हैं गिवन पार्ट. गिवन पार्ट में क्या दिया है आपको? Q1 5 microcoulomb and what about Q2? It is minus 5 microcoulomb, right? और 5 microcoulomb को कैसे लिख सकते हैं? माइक्रो मीन्स 10 raised to the minus 6 coulomb. Again minus 5 into 10 raised to the minus 6 coulomb. Again one more thing is given here, that is the distance 2 mm apart. अगर ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 mm अपार्ट. तो मतलब R दिया हुआ है दोनों के बीच का, 2a दिया गया है जैसे कि हमने पढ़ा है. 2a कितना दिया गया है? 1 mm, राइट. तो 1 mm है, तो 1 mm को कैसे लिखते हैं? 10 raised to a minus 3 meter. Since we are solving numericals in SI units, so we have to convert mm into meter, micros into coulomb, right? So now you have to find out the dipole moment. For dipole moment, the formula is Q into 2a, right? The magnitude of the charge is this 5 into 10 raised to a minus 6 into 2a distance is given this. पहले भी हमने बात की है कि a नहीं दिया है, 2a. हमेशा हम दो डाइपोल के बीच में दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको 2a रिप्रेजेंट करते हैं. तो इट विल बी 10 raised to minus 3. ठीक है. जब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा? 5 इंटू बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो इट बिकम्स 10 raised to minus 9. And what is the unit here? Coulomb. Distance is in meter, so coulomb meter is the answer. This is the dipole moment for a dipole having charge 5 microcoulomb and minus 5 microcoulomb at a distance 1 mm apart, right? So this is the very first numerical based on the dipole moment. चलिए दूसरे पे चलते हैं. Hope you have understood. Very simple numerical. We started with the simplest one. Now the next numerical is on our next formula. An electric dipole when held at 30 degree with respect to uniform electric field of 10 raised to power 4 Newton per coulomb. आपने अभी तक एंगल का कॉन्सेप्ट टॉर्क में आया था, राइट? तो इसका मतलब है हमें टॉर्क वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. तो गिवन क्या दिया है? सबसे पहले क्या दिया है? थीटा एंगल दिया है, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑफ 10 raised to power 4 न्यूटन पर कूलम. इट मीन्स व्हाट इज गिवन? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 10 raised to power 4 न्यूटन पर कूलम इज गिवन. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो गिवन. एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क ऑफ दिस. टॉर्क भी दिया गया है 9 into 10 raised to power minus 26 न्यूटन मीटर. So what you have to find out? You have to find out the dipole moment of the dipole, right? The question में क्या दिया है? We have a dipole. It is held at 30 degree with uniform electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है और उस डाइपोल के ऊपर टॉर्क लग रही है 9 into 10 raised to minus 26 न्यूटन मीटर. तो what is dipole moment? Since using formula, आपको पता है बच्चे पेपर में हमेशा इसी तरह से लिखना है. पहले गिवन पार्ट लिखना है, आफ्टर दैट फॉर्मूला यूज्ड. कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? टाउ हमने पढ़ा था, PE साइन थीटा होता है, PE साइन थीटा, राइट? P क्रॉस E था तो PE साइन थीटा. हमें यहाँ क्या क्या दिया है? टाउ दिया है,
P नहीं दिया है, E दिया है, थीटा दिया है, तो यू कैन फाइंड आउट। अब बता दीजिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री कितना होता है पहले, जल्दी से 1/2, दैट इज 0.5, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे अगर मुझे P निकालना है तो लेट इट बी P ऑन वन साइड एंड E sin theta at the denominator, right? From the formula we have rearranged. तो टाउ कितना है बच्चा, जितने भी वैल्यूज दी हैं जस्ट पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट द डिजायर्ड आंसर, दैट इज 10⁴ into sin theta is 0.5. When you solve these values you will come with a solution, दैट इज 10 की पावर्स को अलग से कैलकुलेट करना है, इसे अलग से कैलकुलेट करना है, तो यू विल गेट द आंसर 1.8 into 10⁻29 कूलम मीटर, राइट। So this is your next numerical. We have solved two numericals till now. First one is based on dipole moment, second one is on torque. Again we have to find here, that is the dipole moment. Then your third numerical, I have written the numerical answers also, right? So you have to find or solve more and more numericals based on such formulas so that it will be, the concept will be more clear to you people, right? Chaliye, comes to your next numerical, that is calculate electric field due to an electric dipole of length 10 centimeter. अब लेंथ इलेक्ट्रिक डाइपोल पे दी गई है, इसका मतलब क्या दिया है, 2a दिया गया है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, राइट। हैविंग चार्जेस 1 माइक्रोकूलम, अब डाइपोल के चार्जेस क्या दिए गए हैं, 1 माइक्रोकूलम, इक्वल एंड ऑपोजिट होता है तो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो प्लस 1 माइक्रोकूलम एंड माइनस 1 माइक्रोकूलम, राइट। तो 1 माइक्रोकूलम को कैसे लिख सकते हैं, 1 into 10⁻⁶ कूलम, तो 1 को 10⁻⁶ कूलम ही लिख देंगे, क्लियर। अब लिखा क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, चार्जेस भी दिए हैं एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। अगर आपको इक्वेटोरियल वाला डेरिवेशन याद हो तो इन्होंने वो डेरिवेशन, जैसे यहाँ पे हमने डाइपोल बनाया, ठीक है, -q + q, तो यहाँ सेंटर से इसका डिस्टेंस दिया गया है, कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया गया है, और इक्वेटोरियल पॉइंट से, इक्वेटोरियल पॉइंट सेंटर से ये डिस्टेंस जिसको हम r बोलते थे वो 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी आपको पता है वो इस डायरेक्शन में आई थी, ऑपोजिट टू दैट ऑफ p, अगर याद हो कंपोनेंट रिजॉल्व किए थे, ठीक है। चलिए, r दिया गया है, इसका मतलब 12 सेंटीमीटर, और इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला क्या था, p। अगर एक्सियल की बात करें तो 2p था, लेकिन इक्वेटोरियल में सिर्फ p था, अपॉन 4πε0 r² + a² की पावर 3/2, यही फॉर्मूला था, ठीक है। अभी इग्नोर हमने नहीं किया, वहाँ पे तो a को इग्नोर कर दिया था लास्ट तक, लास्ट फॉर्मूले तक, पहले तो यही फॉर्मूला आया था, फिर इस फॉर्मूले में हमने a को इग्नोर किया था, राइट। लेकिन यहाँ इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, a जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, बिल्कुल आपस में क्या है, पास पास हैं। a तो छोटा, इतना छोटा नहीं है, ठीक है, r से a इतना छोटा नहीं है, इसीलिए हम a को इग्नोर यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्लियर, क्योंकि वैल्यूज बिल्कुल करीब हैं। अब यहाँ पे बच्चे आपको क्या चाहिए, a चाहिए, यहाँ पे 2a है, तो a कितना आ जाएगा, a कम्स आउट टू बी 5 सेंटीमीटर, और अगर मीटर में करना हो तो 0.05 meters. Why? Because we are solving numericals in SIs, right? So put the values, all the values here, you will get the desired answer. What else is given here? P को बच्चे क्या लिख सकते हैं, Q into 2A अपॉन 4πε0 r² + a² की पावर 3/2। Q दिया है, अब इसको तोड़ा क्यों, क्योंकि हमें डायरेक्ट P नहीं दिया है, डाइपोल मूवमेंट नहीं दिया है,
चार्ज दिया है और डिस्टेंस दिया है, ठीक है। चार्ज की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 10⁻⁶। 2a की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर। 4πε0 की वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, मैं बात कर रही हूँ 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9। आर दिया गया है 12 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कर लो तो 0.12 मीटर हो जाएगा। ए अभी निकाला ये, और फिर वैल्यूज पुट कर लेनी है, ठीक है। तो आंसर कम्स आउट टू बी 4.096 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर। रिमेंबर यू हैव टू डिजिग्नेट दिस फॉर्मूला, दैट इज फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, the answer and the unit of the, that is your electric field, that should be mentioned, otherwise it will deduct your marks, right। चलिए अब वैल्यूज पुट करेंगे सारी की सारी, पूरे अच्छे से सॉल्व करना है आपने, राइट। तो आंसर विल बी हियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ रख रही हूँ और पेज में यहाँ पे रख रही हूँ ताकि आपको सामने सामने क्लियर हो जाए। क्लियर, चलिए ऐसे रख लेते हैं और आपको क्वेश्चन भी पता चलेगा साथ साथ में। चलिए अब रीड आउट करना है। यहाँ पे एक्सियल लाइन का भी पूछा गया है, इक्वेटोरियल लाइन का भी पूछा गया है बेटा। और यहाँ पे ऊपर वाले फॉर्मूले में याद रखना, ए को तब नेग्लेक्ट करेंगे जब ये वैल्यूज़, ए की वैल्यू और आर की वैल्यू बहुत दूर हो आपस में, ए बहुत छोटा हो आर बहुत बड़ा हो, तब नेग्लेक्ट करेंगे फॉर्मूला में, अदरवाइज यूज़ करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट में यही चीज़ हम देखेंगे। 2 चार्जेस +-10 माइक्रोकूलम, 2 चार्जेस दिए गए हैं, आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट, मतलब 2a कितना दिया गया है गिवन। अगर हम लिखें सोल्यूशन, इसी इक्वेशन का सोल्यूशन, तो गिवन हमें क्या दिया गया है, एक तो चार्ज +-10 माइक्रोकूलम प्लस क्यू 10 माइक्रोकूलम है, माइनस क्यू माइनस 10 माइक्रोकूलम है। 10 माइक्रोकूलम को कैसे लिख सकते हैं, 10 × 10⁻⁶ कूलम, राइट। 5 mm अपार्ट, तो क्या दिया है, 2a दिया गया है, 5 mm। अब 5 mm तो बहुत छोटा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, मीटर में करना हो तो -3 मीटर, मिलीमीटर्स को, राइट। अब पूछा क्या है, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। एक डाइपोल है, डायग्राम बना लेते हैं ए पार्ट की। एक डाइपोल है, -q +q, ए बी पॉइंट्स रख लेते हैं और इसका सेंटर O है। ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर O ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इसकी साइड पे, तो इस तरफ कहीं पे इसका पॉइंट क्या है, P है, और सेंटर से इसका डिस्टेंस, इस P का डिस्टेंस कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस जो है ये कितना दिया गया है, 5 mm। इसका मतलब a तो और कम होगा, ठीक है, दैट इज़ 5/2 mm और कम होगा। तो अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, तो हम इग्नोर कर सकते हैं a को। वाई, बिकॉज a इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास R कितना दे दिया इस वाले फॉर्मूले में, R कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 0.15 मीटर्स, ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर हम निकाल दें। अब कैसे पता लगा, एक्सिस पे ही आएगा क्योंकि लिखा ऑन द साइड ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज, साइड आ गई पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है। चलिए अब ज़रूरी नहीं है नेगेटिव यहाँ हो पॉजिटिव यहाँ हो, आप नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ भी लिख सकते हैं, फिर पॉजिटिव के इस साइड आ जाएगा P पॉइंट हमारा, राइट। चलिए तो फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का, सीधे सीधे एक्सियल लाइन पे 2p/4πε0 r³। अब सीधे ये फॉर्मूला यूज़ किया, वहाँ पे था r² - a², ठीक है, अगर याद हो तो। लेकिन वहाँ पे इग्नोर अब यहाँ पे हमने क्यों किया, क्योंकि a बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू r, राइट।
तभी इग्नोर किया। अब P तो मुझे डायरेक्ट नहीं दिया है, तो Q इंटू 2A लिखूँगी फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बन गया ये। अब वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, 2 2 जा 4 इंटू Q की वैल्यू दिस वन 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 कूलम, राइट। एंड A कितना दिया है, 2 2 जा 4 तो कर दिया है। A कितना है, A कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ से 2A की वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 2A की लिख लेते हैं, इसे 4 नहीं करें, अगर 4 नहीं करें तो इसको 2 ही रहने दो। चलिए, Q की वैल्यू ये आ गई और 2A की वैल्यू ये 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मीटर। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती थी, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, ये आ गई। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं होती, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय आर क्यूब बचा सिर्फ, तो आर क्यूब दिया हुआ है, आर दिया है 0.15 का क्यूब आ जाएगा। एंड व्हेन यू सॉल्व दिस वैल्यू यू विल गेट द आंसर 2.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर, ठीक है बेटा। अब आपने इसको सॉल्व कैसे किया पहले ही मैं बता देती हूँ। आपने 10 की पावर्स को अलग से कैलकुलेट करना है, ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़, राइट, और इनको अलग से मल्टीप्लाई करना है। 9 2 जा 18, 180, 1 इंटू 5, ठीक है। तो 10 की पावर्स को अलग से कैलकुलेट करके इससे डिवाइड करना है इनको, 9 2 5 10 मल्टीप्लाई, राइट। तो सॉल्व करके आपका आंसर आना चाहिए। ये नियर अबाउट आंसर हो गया 2.7 टू 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर मीटर आएगा या न्यूटन पर कूलम आएगा, कूलम आएगा बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम आएगा, नॉट मीटर। क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए सेकंड पार्ट, बी पार्ट क्या दिया गया है। ए पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ डायपोल, मतलब कौन सी होगी, इक्वेटोरियल लाइन। तो मतलब आपको दिया है, डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ दिया है -Q प्लस Q और ये सेंटर O है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 mm है और ये होगा 5/2 आ जाएगा, हाफ हाफ। और यहाँ से कोई पॉइंट है P नॉर्मल सेंटर से, और इसकी फील्ड किस तरफ को आती है, इस तरफ को। अगर रिजॉल्व हम करते थे तो नेट इस तरफ को फील्ड बनती थी, ठीक है। तो इधर भी इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। आर भी सेम है, यहाँ 15 है, यहाँ पे भी 15 है, सब कुछ सेम है, बट फॉर्मूला। अब अगर आपको याद हो, हमने ये भी लिखा था कि ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ई इक्वेटोरियल। तो डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं। ई एक्सियल आपने अभी निकाली, बाकी सब कुछ सेम है, क्योंकि 2A भी सेम है, R भी सेम है, Q भी सेम है, तो ऑब्वियस है एक्सियल वैल्यू में जो आएगा वो ट्वाइस इक्वेटोरियल निकल जाएगा। तो ट्वाइस इक्वेटोरियल, तो ई इक्वेटोरियल निकालना हो तो आ जाएगा ई एक्सियल डिवाइडेड बाय 2। ई एक्सियल अभी निकाली, दिस इज 2.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम डिवाइडेड बाय 2। अब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो नियरली आ जाएगा 1.33, 10 की पावर वैसी की वैसी, हाफ हो गया। अब बेटा यहाँ पे याद रखना सब कुछ सेम था, आर भी सेम था, 2A भी सेम था, तब मैंने जाके ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लिया जो कि हमने पहले सेशन में पढ़ा था। बट अगर इनमें से एक भी चीज़ अलग होगी, चाहे वो आर हो जाए, चाहे वो ए हो जाए, चाहे वो चार्ज हो जाए, तब ये हम यूज़ नहीं करेंगे। तब हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, इक्वेटोरियल वाला, दैट इज P/4 एप्सिलॉन नॉट R क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तब Q इंटू 2A/4 एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, तब उसकी वैल्यू पूरी पुट करेंगे।
इवन ये वाला आंसर भी इस फॉर्मूले से पूरा का पूरा आएगा, बट इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों? सब कुछ सेम है और ये भी हमें पता है ई एक्सेल ट्वाइस इक्वेटोरियल होता है। देन यू हैव टू सॉल्व एंड यू विल गेट द आंसर ईजी वे। राइट, पेपर में डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है बेटा, चलिए। और दो चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है। हम कब ए को नेगलेक्ट करते हैं? जब ए बहुत छोटा दिया गया हो, जैसे यहाँ mm और सेंटीमीटर में है, तो mm बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू सेंटीमीटर, देन वी हैव टू नेगलेक्ट। अदरवाइज अगर हमें नहीं दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है, तब हमें नेगलेक्ट नहीं करना है, तब हमें फॉर्मूला इस तरह का ही यूज़ करना है। क्लियर? चलिए, ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो कि मैंने सॉल्व किए। राइट, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। Just I will adjust it. Just take the screenshot and come to the topics, come to the numerical which you will solve. Take a screenshot of this page also. From problems for practice, you have to solve this one. Problems for practice 1 2 3 4 5 6 7. Hope it is clear to you. See, take the screenshot and come to the next page. Take the screenshots. Answers are also given. If you will face any difficulty, just comment in the comment box. I'll solve for you. Hope you have understood the various problems. Thank you very much.